आसमानों से ऊंचा तिरंगा रहे, आसमानों से ऊंचा तिरंगा रहे, दिल से बुझने ना दो ये अगन साथियों, अगन साथियों, साथियों, साथियों। Dear students, today I will discuss numerical analysis, numericals of chapter dimension analysis. I have already discussed theory of dimension analysis. So today I will discuss the numericals of dimension analysis chapter. So the first numerical of dimension analysis chapter, first numerical, velocity is equal to under root pressure upon x. Then write the dimension of x. ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए इज इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए। थर्ड न्यूमेरिकल है आपका फाइंड आउट द यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट ए एंड बी in the van der Waals equation P plus A upon V square V minus B is equal to RT. And next question, a student writes the Einstein's mass energy equivalence relation as equal to C square upon M, where M is the mass and C is the speed of light in free space. Is the relation correct? If the not establish the correct relation. And next question, question number 5. The centripetal force F acting on a particles moving in a circular orbit depends on its mass m, radius of a circle is small r, and the speed of the particle is small v. Obtain the formula for the centripetal force using dimensional method. And next question, question number 6. Find the dimensions of the constant A, B, C and D in the relation V is equal to A plus Bt plus C upon D plus T, where V is the velocity and T is the time. And next question, question number 8. The velocity of a particle is expressed of a equation V is equal to At plus D upon T, where T is time. Determine the dimensional formula for A and B. And next question, question number 9. A body has an acceleration of 5 km per hour. Find its value in CGS system. So today we will discuss the 9 numericals of dimensional analysis. So first solve the question, and second and third, fourth and fifth, 6, 7, 8 and 9. Because I have already discussed the theory of dimensional analysis, so today discuss the numericals of the dimension chapter. These numericals are very important because the some numericals come in your exams. Discuss the first numerical. Velocity is equal to under root
pressure upon x, then write the dimension of x. यानी आपको कैलकुलेट करना है डायमेंशन ऑफ x, कैलकुलेट करना है, फार्मूला गिवन है आपके पास। तो फर्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन, x की डायमेंशन आपको कैलकुलेट करना है। So apply the given formula, velocity is equal to under root pressure upon x. With the help of this formula, we calculate the value of x, yani dimensions of x. So the formula, velocity is equal to pressure upon x. So calculate the dimensions of x, यानी x की डायमेंशन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो राइट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एंड राइट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। सो डायमेंशन ऑफ प्रेशर मीन्स फर्स्ट राइट द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर मीन्स P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। डायमेंशन ऑफ फोर्स ml t minus 2 upon dimension of area L square, 1 power cancel, so dimension of pressure ml minus 1 t minus 2. So put this dimension of pressure and write the dimension of velocity and calculate the dimension of x. So dimension of velocity lt minus 1 under root dimension of pressure ml minus 1 t minus 2 upon s. So squaring both side, so squaring both side, lt minus 1 whole square is equal to ml minus 1 t minus 2 upon x whole square. Squaring both side, so LT यानी L square t minus 2 and then m L minus 1 t minus 2 upon x. So calculate the value of x. Calculate the value of x. So x is equal to m L minus 1 t minus 2 upon L square t minus 2. So solve this. So x is equal to m L minus 3 and t to minus 2, t to minus 2. If you t minus 2 in numerator, so the value of plus 2 and minus 2 cancel. So dimension of x is equal to ml minus 3. Okay, मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन ऑफ एक्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी l की पावर जो 2 है आप ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी और माइनस 2 माइनस 1 मिलके माइनस 3 हो जाएगी और ये t की पावर माइनस 2 जब आप ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास डायमेंशन ऑफ एक्स कैलकुलेट होके आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है कि द फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए, यानी फिजिकल क्वांटिटी ए इक्वल टू क्या है, प्रेशर अपॉन डेंसिटी। राइट द डायमेंशन ऑफ ए। सो फर्स्ट राइट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर and then write the dimension of density and calculate the dimension of E. Dimension of pressure ml minus 1 T minus 2 and dimension of density ml minus 3. M and M cancel. So ये जो आपका L minus 3 है इसको जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे आप तो ये पावर क्या हो जाएगी,
प्लस हो जाएगी, और ये माइनस पावर है तो इस -1 -3 में से +3 में से जाएगा तो एल स्क्वायर बचेगा, यानी एल स्क्वायर टी माइनस 2। जब आप इसका रूट लेंगे तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 1। ओके, इसका रूट हट जाएगा और इसकी पावर क्या आ जाएगी, एक हमारे पास पावर बचेगी, वो क्या हो जाएगी 80। अगर इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, √L² / T²। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका L/T आएगा, तो L T माइनस 1। ये जब T न्यूमरेटर में जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, LT माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायमेंशन ऑफ ए कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है ये। ठीक है, मेरे हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, कई बार एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आपको डायमेंशन फार्मूले आते हैं, और डायमेंशन फार्मूले अगर आते हैं आपको, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको डायमेंशंस आते होंगे तो आप पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड आउट द यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी इन द वंडर वाल्स इक्वेशन। यानी वंडर वाल इक्वेशन आपके पास है P प्लस A/V² इज P/B माइनस B इज इक्वल टू RT। और इसमें आपको कैलकुलेट करना है A और B के यूनिट और डायमेंशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए। हमने आपसे कहा था कि जब डायमेंशन चैप्टर हमने आपसे थ्योरी, हमारी जो लेक्चर वीडियो है, जो हमारी थ्योरी की लेक्चर वीडियो है डायमेंशन एनालिसिस की, अगर आपने वहां पे देखा होगा तो हमने आपको बताया था कि वही क्वांटिटी ऐड की जा सकती हैं, वही क्वांटिटी सेपरेट की जाती हैं जिनकी डायमेंशंस सेम होगी। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, ये जो हमारी है ये क्वांटिटी क्या है, P प्लस A/V²। इसका मतलब P की जो डायमेंशन है वही हमारी A/V² की डायमेंशन है। तो यहां से हम लोग क्या रख सकते हैं, P इक्वल टू A/V²। ठीक है, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए P इंटू V²। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, V वेलोसिटी नहीं है, V आपका क्या है, वॉल्यूम है। ठीक, अब यहां से देखिएगा P की, अभी आपने P की डायमेंशन क्या, P इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और उसकी डायमेंशन हमने क्या निकाली थी, PL/-1 T-2। और ये आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, L³ का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ml-1 T-2, और ये क्या हो जाएगा आपका L⁶। तो डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपकी जो पावर माइनस है, -1, ये की पावर प्लस है 6, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगी पावर। तो ये हो जाएगा आपका ml6 T-2, ये आपकी आ जाएगी डायमेंशन ऑफ A। ठीक, अब अगर यूनिट कैलकुलेट करना है, कह रहे हैं कि यूनिट भी कैलकुलेट करो, तो यूनिट यहीं से कैलकुलेट कर लीजिए। देखिएगा, A पावर 5 होगी क्योंकि ये 6 पावर है और ये -1 है, तो ये 6 में से 1 जाएगा तो 5 पावर आपकी बचेगी। अब हमने आपसे कहा था कि अगर किसी क्वांटिटी की डायमेंशंस आपको पता है तो आप यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से यूनिट इसकी देखिएगा ना, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, L यानी मीटर है, m की पावर 5, और T आपका क्या है, सेकेंड है, यानी -2। तो ये आपका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। ठीक, अब हम B की डायमेंशन निकालते हैं और यूनिट निकालते हैं, तो B की डायमेंशन और यूनिट क्या हो जाएगी, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ B एंड ऑल्सो कैलकुलेट द यूनिट ऑफ B। अब यहां पे देखिए ना, जो V की डायमेंशन होगी वही क्या होगी, B की डायमेंशन होगी।
क्यों? क्योंकि हमने आपसे कहा था कि वही क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, उन्हीं क्वांटिटी को हम सेपरेट कर सकते हैं जिनके डायमेंशंस फार्मूले क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, v इक्वल टू b, यानी जो v का डायमेंशन फार्मूला होगा वही b का होगा। और क्योंकि v आपका क्या है, यह है आपका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, L क्यूब। ठीक, और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर क्यूब, ये आपका यूनिट हो जाएगा। ठीक, मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार सीबीएसई में भी पूछा गया है आपका कि ए और बी की डायमेंशन कैलकुलेट करिए, वंडरवाल्स इक्वेशन गिवन होगी और उस वंडरवाल्स इक्वेशन में आपको ए और बी की डायमेंशन कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, a student writes the Einstein's mass energy equivalence relation as E is equal to c square upon m, where m is the mass and c is the speed of light in free space. Is the relation correct? If not, establish the correct relation. यानी ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टूडेंट ने फार्मूला ये लिखा, जो हमारा आइंस्टीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये फार्मूला स्टूडेंट ने लिखा है। अब आपको चेक ये करना है कि ये फार्मूला राइट है या रॉन्ग है। अगर ये फार्मूला रॉन्ग है तो आपको राइट फार्मूला स्टेब्लिश करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं। फर्स्ट वी चेक फार्मूला राइट और रॉन्ग विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, and then if the formula are not correct, then establish the right formula with the help of dimensional analysis. Okay, so first check the dimension formula right or wrong with the help of dimension analysis. So first write the dimension of left hand side and then write the dimension of right hand side. If the dimension of both sides are equal, it means the above formula are correct. If the dimensional formula in both sides are not equal, then the above formula are incorrect. Okay, so first write the dimension of left hand side. Left hand side dimension yani energy E, and the dimension formula of energy ml square t minus 2। एनर्जी कोई भी आपकी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो या आपकी काइनेटिक एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो, सभी की डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है, ml स्क्वायर t माइनस 2 आपकी डायमेंशन होती है। ठीक है, ये तो आगे डायमेंशनल फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड का, यानी एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ये आ गया। अब आप डायमेंशन लिखिए राइट हैंड साइड की, यानी डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर अपॉन m। सी क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, LT माइनस 1। तो LT माइनस 1 रख दीजिए यहाँ पे, होल स्क्वायर अपॉन m, यानी मास है कैपिटल M। ये क्या हो जाएगा आपका m माइनस 1 L स्क्वायर t माइनस 2। अब देखिए ना, लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन हमारी आई थी वो क्या थी, ml स्क्वायर t माइनस 2, और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन थी वो क्या थी, m माइनस 1 L स्क्वायर t माइनस 2। द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, सो द अबव फार्मूला इज इनकरेक्ट। इट मीन्स जो स्टूडेंट ने जो फार्मूला लिखा है वो गलत फार्मूला लिखा है, यानी ये वाला जो स्टूडेंट ने फार्मूला लिखा है वो गलत फार्मूला है, क्योंकि डायमेंशन आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड की है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल नहीं आ रही है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड is not equal to the dimension of right hand side, so the above formula is incorrect। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट ने फार्मूला लिखा है वो रॉन्ग है। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट फार्मूला करेक्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो
how to calculate the correct formula with the help of dimensions analysis. So first write the direct E formulas E, C and M. Yani E is directly proportional to C and M. Okay, and write the dimensions A and B. So E is equal to small k CA M B, equation number first, and then write the dimensions of both sides and calculate the value of A and B and put the value of A and B in equation first. Calculate the relation between the energy, speed and mass. It means calculate the correct formula of Einstein's equivalence relation. Okay, so write the dimensions of both sides. Energy ml square T minus 2 is equal to, K is the constant, so dimensionless. C, speed of light, yani LT minus 1, A, and M is the mass, so dimension M, B. So calculate the value of A and B with the help of this equation. It means M L square T minus 2 is equal to L to power A. ये आपकी क्या हो जाएगी, A L की पावर आ जाएगी, और यहां पे क्या आ जाएगी, M की पावर B एंड T की पावर A. ठीक, ये आपकी आ जाएगी यहाँ पे जो आपने LT T माइनस A और M क्या आ जाएगा B, और यहां से क्या आप इसको जरा कैलकुलेट करिए तो वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी. यहां से कंपेयर करिए वैल्यू की जरा, तो कंपेयर जब करेंगे तो यहां से देखिए B की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर पावर क्या है 1 है, इधर पावर क्या है B है, तो B इक्वल टू 1 आ जाएगा. ठीक है, यहां से A की वैल्यू इससे अगर LL की करिए जरा तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और इसकी कंपेयर करिए तब भी माइनस A इक्वल टू माइनस 2 कैंसिल, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 वैल्यू आपके पास फिर भी आएगा. अगर आप इसकी पावर कंपेयर करेंगे फिर भी A की वैल्यू 2 आएगा, इसकी पावर कंपेयर करेंगे फिर वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी. अब ये A और B की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. सो द वैल्यू ऑफ A एंड B पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए. तो देखिएगा हमारे पास जो A की वैल्यू आई थी वो आई थी 2 और B की वैल्यू आई थी 1. यहां पे पुट कर दीजिए, यानी A इक्वल टू क्या आ जाएगा K, और C की पावर A है यानी C स्क्वायर, और M की पावर B है, B की पावर 1, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा K M C स्क्वायर इफ कांस्टेंट K इक्वल टू 1, कांस्टेंट K की वैल्यू 1 होती है, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा MC स्क्वायर. दिस इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ आइंस्टीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है. तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ये करेक्ट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस से कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है. ठीक है, इस हिसाब से आप और टाइप जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व कर लीजिएगा. बाई चांस अगर किसी स्टूडेंट ने इनकरेक्ट फार्मूला लिखा है तो उसको चेक कैसे करेंगे, दोनों साइड के डायमेंशंस लिखेंगे, और डायमेंशन लिखने के बाद अगर डायमेंशन बोथ साइड इक्वल आ रही है इसका मतलब वो करेक्ट फार्मूला है. अगर डायमेंशन बोथ साइड इक्वल नहीं आ रही है तो इसके मतलब जो फार्मूला लिखा गया है वो क्या है, इनकरेक्ट है. और जब इनकरेक्ट आ जाएगा तो करेक्ट फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मेथड हमने आपको बताया है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट. यानी कोई ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, और कोई पार्टिकल इस सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और मान लेते हैं ये सेंटर है आपका, इसकी रेडियस r है. ठीक है, रेडियस r है, इस पे F फोर्स वर्क कर रहा है.
ये सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ये होता है उस फोर्स को कहते हैं जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ हो, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, एफ फोर्स वर्क कर रहा है, आर रेडियस है और वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ऑब्टेन द फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, यानी आपको इस एफ का फार्मूला कैलकुलेट करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। किस हेल्प से आपको फार्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है, आर और वी पे ये डिपेंड कर रहा है। मास भी शायद गिवन होगा इसका, इस पार्टिकल का मास जो है आपका वो स्मॉल एम है। तो देखिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है, एम पे डिपेंड कर रहा है और वी पे डिपेंड कर रहा है। तो एफ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख दीजिए एम वी आर के, उसके बाद डायमेंशंस एबीसी ले लीजिए और डायमेंशंस एबीसी लेने के बाद वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए एबीसी की, और वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए तो आपके पास फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का निकल आएगा। ओके, तो मेरे हिसाब से ये इतना पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला स्टेब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस से। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मान F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी आर, क्योंकि कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ की जो आपकी रेडियस है वो क्या है, स्मॉल r है, और मास क्या है उसका, स्मॉल m है। इन तीनों पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख दिया। अब इसके डायमेंशंस ले लीजिए a b c। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल हटाइए जरा, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K M V B R C, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड एंड कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A B C एंड देन द वैल्यू ऑफ A B C पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन फार्मूला आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का निकल के आ जाएगा। सो फर्स्ट राइट द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, डायमेंशन ऑफ बोथ साइड क्या हो जाएगी, MLT-2। ये तो आपकी फोर्स की डायमेंशन हो गई MLT-2, और K कांस्टेंट है, ये तो डायमेंशन लेस है, सभी लोग जानते हैं। M है मास, तो M की पावर A, और V वेलोसिटी है LT-1B, R रेडियस है LC। ये आपके पास आ जाएगा MLT-2 इज इक्वल टू, इनको जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाइकेशन में पावर देखिए M की पावर A हो जाएगा ये, और यहां पे देखिए L की पावर B और L की पावर C क्या हो जाएगा, L की पावर B प्लस C, L की पावर B प्लस C, और T ये -1 है, माइनस B हो जाएगा ये। ठीक, ये आपके पास निकला है। अब क्या करिए, आप कंपेयर कर दीजिए पावर बोथ साइड। सो द कंपेयरिंग द पावर बोथ साइड वी गेट, तो यहां से देखिए m की पावर 1 है, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, कंपेयरिंग द पावर बोथ साइड। और यहां पे देखिए l की पावर b प्लस c है, और इधर l की पावर क्या है 1 है, तो b प्लस c इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, और t की पावर माइनस b है इधर, और इधर t की पावर -2 है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा -b इक्वल टू -2। ये -b है और ये -2 है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब ये b की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, c की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस c इक्वल टू 1। ठीक है, अब c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इक्वल टू 1 माइनस 2, तो c इक्वल टू ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस की 1 आएगी, क्योंकि ये माइनस का 2 ज्यादा है, तो यहाँ पे साइन क्या लगेगा माइनस लगेगा। अब हमारे पास देखिए वैल्यू किसकी किसकी आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, और c की वैल्यू आ गई। अब क्या करिए आप, द वैल्यू ऑफ a b c पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट कर दीजिए वैल्यू ऑफ a b c पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास k m की पावर a कितना है 1, v की पावर b कितना है 2, r c कितना है आपका -1। ठीक,
तो ये फार्मूला आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का निकल के आ जाएगा, यानी F इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर, इसको डिनोमिनेटर में लाइए तो प्लस हो जाएगा, ये आर आ जाएगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की फार्मूला आपका आ जाएगा। इफ के इज इक्वल टू 1 देन एफ इक्वल टू क्या आ गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला कैलकुलेट होके आ गया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मेरे हिसाब से ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हों सारे के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, और जब सॉल्व कर लेंगे सारे के सारे क्वेश्चन और टाइप के, तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। क्योंकि हमने आपको लगभग करीब पिछले लेक्चर वीडियो में भी हमने आपको समझाया था इस टाइप के क्वेश्चन, और इस लेक्चर वीडियो में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपके, ये सेकंड क्वेश्चन है, हमने आपको बताया है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट ए बी सी एंड डी इन द रिलेशन आपके पास है v इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, वेयर v इज द वेलोसिटी एंड t इज द टाइम। यहाँ पे v जो है आपकी वेलोसिटी है और जो t है वो टाइम है। आपको कैलकुलेट करना है डायमेंशन a b c एंड d। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v हो जाएगा, यानी a इक्वल टू v। तो a इक्वल टू v की डायमेंशन क्या होती है, LT माइनस 1। तो एक आंसर तो आपके पास निकल के आ गया। ठीक, अब डायमेंशन ऑफ bt, यानी इसकी जो वैल्यू होगी bt डायमेंशन ऑफ v होगा, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, bt। तो b इक्वल टू v अपॉन t, ये t इधर आ जाएगा। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है आपकी, LT माइनस 1, और t की क्या हो जाएगी, t। तो डायमेंशन ऑफ b, ये t न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या आ जाएगा, LT माइनस 2। तो ये b की भी आपके पास डायमेंशन कैलकुलेट होके आ जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन एक प्रीवियस लेक्चर पहले एक स्टूडेंट्स ने पूछा था, उसको हमने रिटर्न रूप में भी इसको भेजा था इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके जो है। ठीक है, अब हम लोग डायमेंशन ऑफ सी की कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे डायमेंशन ऑफ सी। मेरे हिसाब से इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखिए ये जो डायमेंशन होगी यहाँ पे, ये d और t दोनों ऐड हो रहा है, और हमने आपसे कहा था कि वही क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो d की डायमेंशन क्या होगी, जो t की डायमेंशन होगी। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, t। तो d इक्वल टू कैपिटल T, यानी d की डायमेंशन आ गई। अब c की जब डायमेंशन निकालेंगे तो इस d से मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि d और t की डायमेंशन क्या है, सेम है। तो v इक्वल टू क्या रख देंगे हम लोग, v इक्वल टू c अपॉन t। ठीक, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इंटू t। अब यहां पे लिख दीजिएगा डायमेंशन ऑफ v LT माइनस 1, और डायमेंशन ऑफ t क्या हो जाएगा, t। तो ये t माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ l आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये t माइनस और ये t प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आ गए, डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ c एंड डायमेंशन ऑफ t। और यही हमें कैलकुलेट करना था। मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होता है। इतना तो वो कैलकुलेट कर लेता है, डायमेंशन ऑफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं और डायमेंशन ऑफ बी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनको कहां पे आती है, ये जो फैक्टर आता है यहीं पे उनको प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्या करना है हमें, डी की जो डायमेंशन होगी वो टी की डायमेंशन होगी, तो ये हमने रख दिया जो है। ठीक, अब इस डी से तो कोई मतलब हुआ नहीं हमारे पास, तो ये v इक्वल टू क्या रख देंगे, c अपॉन टी। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी। ठीक,
तो इस तरीके से हम लोग सी की डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आ गया होगा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। और यहां पे a और c यानी a और c की जो डायमेंशन गिवन है वो है ml माइनस 1 t माइनस 2 दी गई है, और कह रहे हैं कि ये आप b की डायमेंशन कैलकुलेट करिए। जरा वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बस हमारा जो एक वर्ड है वो ध्यान दीजिएगा, उन्हीं क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो a की डायमेंशन होगी वही b की डायमेंशन होगी, और a की डायमेंशन क्या दी हुई है, ml माइनस 1 t माइनस 2, यानी a डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। तो ये डायमेंशन ऑफ b क्या हो जाएगा, ml माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि b की डायमेंशन क्या होगी। कि केवल एक आप वर्ड एक बार केवल आप याद रखिएगा कि वही हम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जरा। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन v इक्वल टू दिया हुआ है at प्लस b अपॉन t, where t is the time and v is the velocity, determine the dimensional formula of a and b। यानी a और b का डायमेंशनल फार्मूला आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है, ये आपका हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा at, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपॉन t, और v का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है lt माइनस 1, क्योंकि वेलोसिटी है ये t है। अब देखिए ये t ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा lt माइनस 2। तो ये तो आपका आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a। b का कैलकुलेट कर लीजिए, तो b का डायमेंशनल फार्मूला यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा b अपॉन t, तो b इक्वल टू v इंटू t। ठीक है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा lt माइनस 1, और t क्या हो जाएगा t, तो ये b का जो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा वो l निकल के आ जाएगा। ठीक है, शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो आपका है माइनस टी और ये प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये भी मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जब समझ में आ गया है तो इस टाइप के और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, और जब और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो और ज्यादा क्लियर जो भी प्रॉब्लम्स है सारी आपकी हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है आपका 9, क्योंकि वो 6 था ये भी हमने डाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका अ बॉडी एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। यानी ये वैल्यू जो आपकी वैल्यू दी हुई है वो एमकेएस सिस्टम में गिवन है, आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो मेथड हमने आपको जब थ्योरी हमने बताई थी तो मेथड वहां पे आपको बताया था कि हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो अगर आपने थ्योरी लेक्चर वीडियो हमारी देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन पता चल रहा होगा कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। वहां पे हमने उस लेक्चर वीडियो में हमने आपको 1 न्यूटन को चेंज करके दिखाया था कि हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम,
और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन आया था। शायद आपने लेक्चर वीडियो अगर देखी होगी तो ये भी आप समझ रहे होंगे कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं आपके पास एमकेएस सिस्टम में जो आपकी वैल्यू है वो N1 है, सीजीएस सिस्टम में क्या है N2 है। तो हम लोग इसकी जो, और ये आपकी एक्सीलरेशन है, किलोमीटर पर आवर एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन की डायमेंशन सभी लोग जानते हैं क्या होती है, LT-2। अब हम दोनों सिस्टम्स के इक्वल रख देते हैं, यानी N1 L1 T-2 इक्वल टू N2 L2 T-2। और यहां से आप क्या वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, N2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। N1 आपके पास कितना गिवन है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 ये हो जाएगा L1 अपान L2, भाई ये L2 इसके नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा T1 अपान T2 -2। ठीक है, अब जरा वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करके N2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 क्या है हमारे पास 5। अब यहां पे देखिएगा L1 जो आपके है वो एमकेएस सिस्टम में है, और एमकेएस सिस्टम में यहाँ पे क्या है किलोमीटर, ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इस किलोमीटर को चेंज किस में करना है, सेंटीमीटर में करना है। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये तो हो गया 1000 मीटर हो गया, और सेंटीमीटर यानी 100 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, क्योंकि ये आपके क्या है सीजीएस सिस्टम में है। ठीक, अब जरा टाइम में आ जाते हैं हम लोग। टाइम आपके पास क्या है, देखिएगा ये एमकेएस सिस्टम में क्या है आवर है, और ये सीजीएस सिस्टम में हमारा क्या होगा सेकेंड। तो सेकेंड इसमें भी होता है, लेकिन इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60, ये पहले ये तो मिनट हो गया, मिनट के बाद सेकेंड हो गया, तो ये आपका होगा सेकेंड अपॉन सेकेंड। और इसको हम लिख सकते हैं -2 पावर, तो यहां पे हम लिख देंगे -2 पावर जो है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा N2 इक्वल टू 5 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन, देखिएगा ये पावर -2 है, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगा प्लस पावर हो जाएगा, यानी 60 इंटू 60 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कितने 1 2 3 4 यानी 2 टाइम्स इसका हो जाएगा, यानी 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60। अब देखिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वैल्यू आपके पास आ जाएगा N2 इज इक्वल टू 50 अपॉन 36 इंटू 36, ये 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी, यानी N2 इक्वल टू 0.0365 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगी। मेरे हिसाब से आंसर आपका 3 ये हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी 386। ठीक, इस तरीके से ये वैल्यू आपके, जब इसको डिवाइड करेंगे 50 से, तो ये आपके पास निकल के आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से आपको सारे न्यूमेरिकल्स मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे, और काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के ये। इनको आप बहुत ही डीपली इसको देख करके लेक्चर वीडियो, और लेक्चर वीडियो देखने के बाद
आप क्या करिएगा, इसको जो है एक बार कॉपी में सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद जो है फिर से लेक्चर वीडियो एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको सारी चीजें जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं रहेगी। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने बताए हैं आपको, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स एक बार कॉपी में जरूर आप कर लीजिएगा, जिससे जो भी प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल में आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। और फिर हम आपसे एक बार कह रहे हैं, प्रीवियस जो भी लेक्चर वीडियो हमारी है उसको भी 2 बार देखिएगा, तभी आपकी जो ये लेक्चर वीडियो है वो समझ में आएगी। क्योंकि अगर एक भी लेक्चर वीडियो आपने मिस कर दिया तो आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आपकी एक टॉपिक अगर आपका छूट गया तो दूसरे टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रीवियस जो भी हमारी लेक्चर वीडियो है उनको देख लीजिएगा और उसके बाद ये लेक्चर वीडियो देखिएगा तो आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो थ्योरी पे रिलेटेड होते हैं, थ्योरी पे बेस्ड होते हैं। अगर आपको थ्योरी आती है तो आपको न्यूमेरिकल आएगा, और अगर थ्योरी नहीं आती है तो आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा जो है। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस लेक्चर वीडियो हमारी हैं वो देख लीजिएगा और उसके बाद हमारी जो ये लेक्चर वीडियो है ये देखिएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा जब भी न्यू लेक्चर वीडियो आएगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा न्यू लेक्चर वीडियो की। तो जो भी लोग हैं, जो लोग हमारी लेक्चर वीडियो देख रहे हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही हमारी न्यू लेक्चर वीडियो आएगी न्यू टॉपिक की, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू।